Public policy. I don't know what you understand of it, but I hope you realize that public policy touches every one of us in almost all aspects of our life. That's what public policy is. I mean, that's, and therefore, in some sense, we are all participants in it. We are all stakeholders in public policy. Yeah? And this is why I sort of discussed with Arvind and said that public policy and everyday life. Because everywhere you go, whether it's your railway journey or your municipal park in your colony or your sanitation or the laws governing how you keep your domestic servants or how you travel, everything is public policy. And therefore, to sort of define public policy is really, मुझे पता नहीं आप लोगों ने कितने लोगों ने रूसो को पढ़ा है, जो फ्रेंच फिलोसफर थे. उन्होंने कहा था कि ये सोसाइटी इज़ अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, है ना. तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब हुआ कि आपके मतलब आपने गवर्नमेंट से कुछ कहा है करने को, उन्होंने वायदा किया है. गवर्नमेंट मतलब आपकी रिप्रेजेंटेटिव. डेमोक्रेसी की बात है. वैसे भी किसी में भी ऑटोक्रेसी हो, जब भी हो, या फ्यूडलिज्म हो, मोनार्की हो, तो मोनार्की भी कुछ तो देता था, अपने राजा प्रजा को कुछ देता था, तभी उसको वो राजा मानते थे, वरना वो राजा नहीं मानते उसको. तो राजा प्रजा का जो ताल्लुक़ है, राजा प्रजा का जो रिश्ता है, वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है. और उस सोशल कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए जो इंस्ट्रूमेंटलिटी है वो पब्लिक पॉलिसी है. ये बात समझ में आई ना आपको? बिल्कुल इसको बिल्कुल साफ़ होना चाहिए. और इसलिए पब्लिक पॉलिसी में, जैसे मैंने कहा कि ऑल ऑफ अस आर स्टेक होल्डर्स इन पब्लिक पॉलिसी. अब उसमें से मैंने सुना ये कि आप लोग, देयर लॉट्स ऑफ यू हु वांट टू नाउ मेक अ स्विच फ्रॉम बीइंग व्हाटएवर यू आर टू गेटिंग इनटू पब्लिक पॉलिसी प्रोफेशनल्स. तो ये व्हाई इज दिस नीड? आई मीन, यू कैन बी अ सिटीजन एंड बी अ पब्लिक पॉलिसी एक्टिविस्ट, but if you are wanting to do this, that means that you are wanting to play an extra role beyond that of a citizen, beyond that of an informed citizen, beyond that of a duty bound citizen, to play something more important in public policy. So you are wanting to become a part of that instrumentality. तो इसलिए आपका you think of yourself as being intermediaries between the state. Government is very often called the state, right? The state with a big capital S and the people, right? तो अब इसमें जैसे कि हम लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं, तो ये कि राम राज्य कैसे होगा, फिर वो आपके कंधों पर मुनस्सर होगा, निर्भर होगा कि नहीं होगा, उसकी डेफिनेशन क्या होगी वगैरह वगैरह, उसमें आप हिस्सा लेना चाहते हैं. तो ये इस बात को आपको समझना चाहिए. तो इसलिए ये जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, वो इसको ध्यान में रखना चाहिए कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट के क्या फीचर्स हैं, दैट विल डिफाइन द पैरामीटर्स ऑफ पब्लिक पॉलिसी. what are the elements of that social contract? What is the government? Now this social contract very often is reflected in the changing in the different manifestos of the parties. But this is what manifestos are about. Na? They are saying that this will what will give you, therefore please elect us, right? But very often these manifestos or these political parties or the autocracy or the monarch, they have their own idea of what the public policy should be, what the social contract should be, right? I mean, and which may not be at some point of time the same as you think is required for the nation, right? And that's where the contradiction arises, because there is something like the national goal, there is something like the national goal, national objective, आपके राष्ट्र के जो कुछ लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, जो आपकी आकांक्षाएं हैं, वो हो सकता है कि उस पार्टी के नाम, कम्युनिस्ट पार्टी हमेशा चाहती थी, मैं हमारे से उसको पढ़ता आया हूँ कि वो they would like to improve the country in a very big way, but they don't give much credence to to your own democratic rights, because they feel that the democratic rights are subservient to the achievement of the national goal. Now if that is so, you may not think that's right. So that's the sort of interaction, that's the contradiction that will arise. इसमें क्या है कि therefore because it covers all the aspects, it's multidimensional. और उसमें अच्छा यह है चीज़ कि the more in many ways that you can look at it is better, because there are very many aspects from which you can look at it. I mean, for example, I have been fortunate enough to look at public policy as a researcher.
I did my research, so I did my PhDs and my DPhil, and I was looking at policy issues in coal mining. So as a researcher, you have to be just simply, you want to learn about the public policy. You want to, you want to research on public policy. You don't have any other interest in it. Then you can be a policy implementer. You want to be, because that's again the sort of thing that you can have. Or you can be a part of the industry which is affected by the public policy. I was the chief economist of CII or the Secretary General of FICCI, and I interacted with the government, from the other side of the table, and then rather than the policy, from the policy maker point of view. Or, you can be implementer of public policy. For example, if the policy is to give you clean water, you can start an NGO to make sure that people in your constituency get clean water. Now that's an implementer of public policy. Good schooling, women's empowerment, all of this is part of policy. For example, the Anti-Dowry Act was passed in the 1950s, but we know that the dowry still goes on. Now, to implement that public policy can be a very big job and can be a very important part of your social transformation. So that's the other one. So there are different aspects of public policy and very different ways of looking at public policy. And as I said, ये मेरी बहुत खुशकिस्मती रही है कि मैंने रिसर्चर से शुरू किया 82 में, क्योंकि जब मैं रिसर्च कर रहा था पब्लिक पॉलिसी के ऊपर अबाउट रिफॉर्म्स जो कि 91 में हुए, उसके बाद मुझे सरकार में जाने का मौका मिला। फिर मैं ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक चला गया, वहाँ पे मैंने सारी कंट्रीज़ के बारे में पब्लिक पॉलिसी उनके बारे में पढ़ा। फिर मैं वापस आया तो CII में चीफ इकोनॉमिस्ट बन गया, तो वहाँ से मैं रिप्रेजेंटेशन करता था सरकार को जाके कि इंडस्ट्री का कैसे फ़ायदा हो। फिर मैं FICCI का चीफ सेक्रेटरी जनरल बन गया, और फिर उसके बाद नीति आयोग में भी आ गए, जहाँ की मुझे पॉलिसी बनाने का और पॉलिसी में हस्तक्षेप करने का मौका मिला। तो मैं आपसे ये सब क्यों कह रहा हूँ कि आपको तय करना है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं। हर एक जना नीति आयोग में जाए और वहाँ जाके एक रिसर्च असिस्टेंट बन के और कुछ कर ले, वो ज़रूरी नहीं है कि उसमें पब्लिक पॉलिसी में कंट्रीब्यूशन होगा। क्या हो सकता है कि आप जो है वो जर्नलिस्ट बने, उनका आपका इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा हो जाए। आप एक्टिविस्ट बन जाएं, उसमें बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप किसी पार्टी को ज्वाइन करके उसकी पॉलिसी उसको जो है वो ट्यून करें। तो अपना दिमाग, अपनी इच्छा, अपना जो ऑब्जेक्टिव है उसको यू हैव टू कीप एन ओपन माइंड एज टू विच आस्पेक्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी you want to intervene in and you want to be doing that. So that's now isme, why am I saying this to you? And because this is a part of the topic is public policy in everyday life, that you can be an academic researcher. The big advantage of that is that you can influence policy but have no responsibility, right? When you can write, you can do a research and you can write comments on it, etc., etc. And you can, God willing, with your good help, etc., if you become, so you can be this academic researcher who are influencer without constraint, right? Now that's one category of people who like to be in public policy. The other one is that, I only want to be a commentator. I don't want to, actually, I'm not bothered whether I influence policy or not influence policy. A lot of people who are writing as journalists, who write very strong op-eds or who are doing etc., they are commentators. Unka kya hai ki what their view is that they don't want to directly influence the policy maker, but they want to change the public opinion. Now that's the other big aspect of public policy. And in a democracy sometimes, this is the very big aspect, which is that very often हम लोग कई बार ये सोचते हैं, बड़े बड़े अच्छे लोग सोचते हैं कि जाके किसी सेक्रेटरी साहब से बात कर लीजिए या मिनिस्टर साहब से बात कर लीजिए तो वो पॉलिसी बदल जाएगी। 99 टाइम्स आउट ऑफ 100 वो नहीं होता है, क्योंकि वो लोग देखते रहते हैं, उनकी नज़र होती है कि लोग क्या चाहते हैं, व्हाट इज़ देयर, बिकॉज दिस अ डेमोक्रेसी। ना ऑटोक्रेसी में हो सकता है, बीजिंग में ये हो सकता है, मॉस्को में शायद हो सकता हो, पर नई दिल्ली में शायद होना मुश्किल है, या किसी भी राज्य हमारी स्टेट कैपिटल में होना मुश्किल है। तो फिर एक बहुत बड़ा रोल है कि आप पब्लिक नैरेटिव को कैसे बदलें। what do you do to change the public narrative? Now very often we don't talk about this, and I'm emphasizing all this simply because every time you go to a public policy class or meet some people, their only aspiration is to join the government. Now that may or may not be relevant, they may not be useful. आपको क्या उससे फ़र्क पड़ेगा अगर आप चले भी गए हो, कहीं बन गए आप, जैसे मैंने कहा कि कहीं पर भी सीनियर एडवाइज़र, रिसर्च असिस्टेंट, तो एक यू कैन बी अ कॉग इन द व्हील,
उसके अलावा अगर आप मतलब मान लीजिए ऐसी जगह पे पहुँचे जहाँ पर आप अभियान शुरू कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात हम लोगों ने, मैंने एक बार प्रधानमंत्री के साथ हम लोग बात कर रहे थे, वो ये कि भारत को अगर विकसित देश बनाना है तो क्या करना बहुत ज़रूरी है। गवर्नेंस कॉन्फ्रेंस की बात है। तो ये समझ में आया कि भारत को विकसित देश बनाने के लिए अगर हम विकास को एक जन आंदोलन बना लें तो विकास हो पाएगा। इसको बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखिए आज़ादी की बात हमारी 1881 में शुरू हुई, कांग्रेस गवर्नमेंट बनी बनाई वगैरह जो भी कुछ हुआ, मगर when did we really catch the momentum for independence? When Mahatma Gandhi came and made independence a public movement, कि नोआखली से लेकर और गुजरात तक वहाँ पर सब लोगों को लगा जो भी कुछ करो हमें अपनी आज़ादी के लिए करना है। तो वो चीज़ कैसे होगी, वो आज नहीं है। आज हम लोग सब ये समझते हैं कि विकास की जिम्मेवारी सिर्फ सरकार पर है, तो बेकार है, तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं। आपका उसमें क्या हस्तक्षेप कैसे हो सकता है ये आपको सोचना पड़ेगा, और इसके मैं आपको इसलिए अलग अलग तरीके बता रहा हूँ कि जिससे होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके हो सकते हैं। तीसरी चीज़ जैसे है कि आप इम्प्लीमेंटर हो जाएं पॉलिसी के। जो पॉलिसी बनी हुई है, जैसे मैं इसके उदाहरण आपको दिए भी, आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ एंटी डाउरी, एनवायरनमेंट, कटिंग ट्रीज़, वाटर, सैनिटेशन, नदियों का है, जैसे कि कौन से हैं वो जो सदगुरु चला रहे हैं, वो नदी की यात्रा चला रहे हैं। अब वो क्या कर रहे हैं, बेसिकली वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब हम लोगों ने नमामि गंगे शुरू किया। मैंने अपने गांव के पास मैंने 2 डिस्ट्रिक्ट अडॉप्ट कर ली हैं, तो वहाँ पे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि नमामि गंगा ही है, गंगा के मेरा गांव, मेरा फार्म गंगा के पास है, कि उसके गंगा के किनारे किनारे अच्छी चीज़ें बन जाएं, जिससे कि नमामि गंगे के आगे हम लोग जो है वो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी भी शुरू करें। तो वो एक इम्प्लीमेंटर का रोल है, वो बहुत ज़रूरी हो सकता है, बहुत बड़ा हो सकता है। उसको कभी नीचे नज़र से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वही लोग बहुत कुछ हद तक काम करके इस चीज़ को आगे बढ़ाते हैं। और दूसरी चीज़ ये भी है कि जो हमारी पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन जो है वो बहुत बार इज़ नॉट एज एम्फसाइज एज इट शुड बी, क्योंकि हमारा एक ख्याल होता है, हम लोग एक लीगलिस्टिक व्यू ऑफ पॉलिसी लेते हैं, पब्लिक पॉलिसी, कि कानून बन गए तो पब्लिक पॉलिसी पूरी हो गई। वो तो 1/4 भी नहीं होता है, 1/10 भी नहीं होता। कितने कानून बन गए हमारे देश में, अगर हम उनका इम्प्लीमेंट करें तो उनको कौन इम्प्लीमेंट करेगा। तो उसके लिए व्हाट वी नीड इज़, दैट्स द अदर आस्पेक्ट ऑफ एक चीज़ है। फिर दूसरी चीज़ है कि पॉलिसी मेकर, और वो दिस द फोर्थ आस्पेक्ट। सो आई टॉक टू यू अबाउट इन्फ्लुएंसर, आई टॉक टू यू अबाउट कमेंटेटर्स, आई टॉक टू यू अबाउट इम्प्लीमेंटर्स, एंड नाउ आई एम टॉकिंग यू अबाउट पॉलिसी मेकर्स। Now that if you can be, it's very glamorous. It can also be very satisfying, but it's not for everybody's cup of tea, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए तो बहुत ही ज़्यादा जिद्दोजहद होती है, एक लड़ाई होती है, क्योंकि सभी लोग वहाँ तक ये पिरामिड बहुत ही शार्प है, ये पॉलिसी यहाँ तक पहुँचने के लिए। इस लाइक अ पिरामिड, तो इन्फ्लुएंसर, कमेंटेटर, इम्प्लीमेंटर, मेकर, और वहाँ तक अगर आपको पहुँचना ही है तो उसके लिए आपको अपना तरीका और रास्ता तय करना पड़ेगा कि कैसे पहुँचें। You can join a political party, you can join an NGO, you can be a researcher like me and hope that you will get somewhere, etc., etc. Very glamorous, but also very, very, very difficult, and also sometimes very frustrating. Because you think you are a good policy maker, you made a good policy, but your boss doesn't want to listen to it because of his or her own ideological reasons. Very good example I can give you from now, कहने में मुझे हिचक नहीं है कि ये हम लोग जब सरकार में आए तो सबसे पहले बात हुई थी कि हम लोग प्राइवेटाइजेशन करेंगे, क्योंकि दिस गवर्नमेंट स्टूड फॉर प्राइवेट एंटरप्राइज, कि हम लोग प्राइवेट को विल सपोर्ट द प्राइवेट एंटरप्राइज, हम प्राइवेटाइजेशन करेंगे। मुझे चेयरमैन बनाया गया एक कमेटी का, कि जो कि कैंडिडेट्स तय करे कि कौन से प्राइवेटाइज हो सकते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस के साथ मेरा काम शुरू हुआ, और डिपार्टमेंट ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट के साथ शुरू हुआ, वो लोग आए वगैरह, लिस्ट बनती गई हर तिमाही, और कुछ होता नहीं गया। उसका क्या करेंगे आप? तो बन तो गई पॉलिसी, बना। ये ऐसी बहुत जगह होता है। 1991 में मैं इकोनॉमिक एडवाइज़र था मनमोहन सिंह साहब के साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री में। वी न्यू दैट वी हैड टू लिबरलाइज, बट वी कैन ओनली डू दैट मच लिबरलाइजेशन, नॉट दैट मच। फार्मर्स लॉ, फार्म लॉज पॉलिसी किसी ने बनाई ना, पॉलिसी 3 फार्म लॉज बनाए, बहुत सोच समझ के बनाए। क्या हुआ? उल्टा नतीजा बिल्कुल उल्टा ही हो गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ आपसे कि इससे आगाह रहना चाहिए। ये बहुत ग्लैमरस होता है, इट्स वेरी अट्रैक्टिव, इट्स समथिंग दैट यू वुड वांट टू डू,
But please be careful that once you go there, you should be prepared. One thing is that the journey is very tough to get to the top, because as I said, the pyramid is very sharp. It becomes, after all, in the government, in the cabinet rank, there are about 100 people out of the 1.4 billion or whatever. So that you can imagine the sharpness of that pyramid. And once you get there, even then you may not be. Now that's the cabinet, but then the policy making actually is goes down to the bureaucratic level, up to the level of maybe the, I think, joint secretary onward. उसमें भी अगर आप जोड़ लें सारे राज्यों को, सबको मिला के, तभी भी शायद 10,000 लोग होंगे. अगर सबको जोड़ लें ना, 3,000 IAS के होते हैं, IPS वाले पॉलिसी नहीं बनाते हैं, और ये हो सकता है कुछ इंडियन रेवेन्यू सर्विस वाले बनाते हों वगैरह, मगर मुश्किल सारे MP MLA नहीं, कैबिनेट मिनिस्टर स्टेट के और गवर्नमेंट के और IAS वगैरह 10,000 से ज़्यादा नहीं है. अब उस तक पहुंचना, उसके लिए आर यू प्रिपेयर्ड टू मेक द सैक्रिफाइस दैट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डन. ये बात है आप, क्योंकि उसमें है ज़रूरत पड़ती है. एंड that's where you get the sort of work-life balance, etc., if you want to achieve that and so on. So I thought it was important to to sort of bring this out to you, that you are doing public policy, but to what end? What is your objective? Where do you want to go? What do you want to achieve in being a public policy? And I wanted to show to you that there are many ways in which you can participate in public policy as an equally effective person. And not to say at all that, oh, only there is when I am effective. No, not at all. I can tell you that I've been a very active columnist. And maybe that is one of the reasons while I was in Niti Aayog and was in the eyes of the people who were selecting me. And being a columnist, I was quite influential. Because I would write something, then I would be invited by some people in the ministry. Aapne kyun likha, kaise likha? So those are just examples. Next, the point is, what is public policy in real, sort of in abstract, in sort of nitty gritty, down the ground, के होते क्या है? तो सबसे पहले तो पब्लिक पॉलिसी की चीज़ होती है कि अवेयरनेस, कि मतलब व्हाट इज़ टू बी डन. पहली बात तो ये आनी चाहिए ना, व्हाट इज़ टू बी डन, मतलब पब्लिक पॉलिसी में हमें करना क्या है. आज के दिन में हमें हिंदुस्तान में पब्लिक पॉलिसी के लिए करना क्या है. तो इसकी एक बात आपको जब तक वो समझ में आएगी, व्हाट पॉलिसी का व्हाट जब तक नहीं समझ में आएगा, तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकते हैं. जो बहुत मुश्किल बात है वो ये है कि हमारे देश, our country is a continent. Our country is more diverse than the whole of Europe. लंदन से लेके मॉस्को तक अगर आप देख लें तो उससे ज़्यादा हमारी डाइवर्सिटी है. Each of our state is actually bigger than most countries in the world. Right? In fact, our district, which is an average size of 3 million people, 30 लाख होते हैं हमारे ज़िले में, एक ज़िले में 30 लाख होते हैं. 30 लाख से छोटे बहुत सारे देश हैं हमारे इस दुनिया में. तो हमारी डिस्ट्रिक्ट भी जो है वो उससे बड़ी है. तो अब ये है कि अब आप वोट किसके लिए तय कर रहे हैं. आप डिस्ट्रिक्ट के लिए तय करेंगे कि राज्य के लिए तय करेंगे कि देश के लिए तय करेंगे. हर व्यक्ति, एवरी स्टूडेंट, एवरीबडी आई नो थिंक्स ओनली ऑफ इंडिया, कि जी हमें पैन इंडिया में पॉलिसी बनानी है. क्वाइट इररेलेवेंट. हमें, और ये पहले इंडिया फाउंडेशन में हम लोग जो 2-3 बड़े काम कर रहे हैं वो यही कर रहे हैं कि कैसे हम नीति को राज्य स्तर पर ले जाएं, कैसे हम नीति को दिल्ली से बाहर करके, क्योंकि इमेजिन रनिंग दिस कंट्री फ्रॉम दिल्ली इज़ लाइक रनिंग द होल ऑफ यूरोप फ्रॉम ब्रसल्स. इज़ दैट पॉसिबल? यू थिंक ऑफ इट. फ्रॉम मॉस्को टू लंदन आप एक ब्रसल्स में बैठा दीजिए कुछ लोगों को, वो तो नहीं. तो इसलिए मैं आपको ये बात होती नहीं है ज़्यादातर. ये बात बहुत ज़रूरी है, वो इसलिए क्योंकि अगर हम लोग इसको नहीं करेंगे तो फिर हमारी इफेक्टिवनेस शुरू से ही ख़त्म हो जाएगी. वेरी ऑफन you know much more about your state than you would ever know about India as a whole. And why not then influence that? Why not change that? Uttarakhand, वहाँ पर sustainable tourism in Uttarakhand will be completely different from sustainable tourism in Tirupati, isn't it? Because वहाँ पे environment वगैरह. Now what would you want to do? अब एक बात आती है, let's make a policy for sustainable tourism. For whom? What? तो ये चीज़ हम लोग एक काम अब कर रहे हैं असम के साथ, हम हेमंत बिस्वा शर्मा जी के साथ हमारा MOU साइन हुआ है
कि हम 7 डिस्ट्रिक्ट का डेवलपमेंट डिज़ाइन बनाएंगे, क्योंकि हमारे देश में अभी डिस्ट्रिक्ट का किसी को पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होती क्या है। एक ज़िले में, और ये बात शुरू हुई हमारी योगी आदित्यनाथ जी से बात करके कि जब कोविड आया तो कोविड के दौरान एग्रीकल्चर वॉज क्या कहते हैं उसको, नेसेसरी एक्टिविटी, एसेंशियल एक्टिविटी, वो चल रहा था। वो बाकी मैन्युफैक्चरिंग बंद हो गई थी, तभी भी उनकी जो जीडीपी ग्रोथ हुई वो गुजरात और महाराष्ट्र से कम निकली। तो उन्होंने पूछा भाई ये कैसे हुआ कि मेरे तो चल रहा था, एग्रीकल्चर से बन रहा था, तो यहाँ पे क्यों हो गया। तो पता लगा कि उनके एग्रीकल्चर की ग्रोथ जो ज़िले डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए वो होती ही नहीं है मेजर, वो ऑल इंडिया पे मेजर हो जाती है, फिर उसको एलोकेट कर देते हैं कहाँ। तो वो चीज़ अब आपको ज़िले में बनाना है, तो हम लोग कर रहे हैं ये काम। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, क्योंकि अगर ज़िले में इकोनॉमिक एक्टिविटी आपने मैप कर ली और फिर ये बताया कि हम उस ज़िले का कैसे करेंगे, और अमेरिका में 630 टाउन्स में ये होता है काम, 630 शहरों में ये काम होता है कि वो मूडीज़ को लगाते हैं, S&P को लगाते हैं, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को लगाते हैं, अपने शहर की इकोनॉमिक एक्टिविटी कैसी होगी, उसकी क्या नेचर होगी, क्या होगा, वो बनाने के लिए लगाते हैं। अगर आप वो बना लें तो अब आप ये समझिए कि उस ज़िले के लेवल पर तो फिर आप ज़िलाधीश के साथ बैठ के बात भी कर सकते हैं, और उसमें आपके जो वहाँ पे जो आपके जो बिजनेसमैन हैं, जो आपके एकेडमिक हैं, जो आपकी सिविल सोसाइटी लोग हैं, ज़िला डिस्ट्रिक्ट इज़ वन लेवल एट विच यू कैन ऑल कम टुगेदर and become, sort of part stakeholders of that public policy. So what is very important? कहाँ पे मतलब, और अभी तक क्या होता आया है वो बहुत अफसोस की बात यह है कि हम लोगों का वोट जो है वो हम लोग दूसरे देशों से ले लेते हैं कि अच्छा भाई फलां जगह हुआ तो हम भी ये करेंगे, फलां जगह ऐसा हुआ तो हम भी ये कर लेंगे, और वो बिल्कुल ही निरर्थक है. It's the worst thing on earth that has happened over the last 75 years. I'm a product of that. But thankfully one has been able to break out of it. और मैंने तय किया कि जब मैं पढ़ रहा था ऑक्सफोर्ड में तो मैंने कहा कि जिस रोज़ मेरी पढ़ाई ख़त्म होगी मैं उसी रोज़ देश वापस चला जाऊँगा, क्योंकि मुझे वहाँ पर जाके सीखना है. और आई वॉज लकी इनफ टू गेट मेंटर्स जिन्होंने मुझे इस देश की में रूट किया, मतलब दे रूटेड मी इन दिस रियलिटी ऑफ माई कंट्री. आई एम टेकिंग यू बियॉन्ड द कंट्री टू योर स्टेट एंड टू योर डिस्ट्रिक्ट, बिकॉज दैट इज़ वेयर द आंसर टू योर वॉट will be very different from the answer to the what that the other person will get. कि मुझे क्या करना है public. That's a what. The second part is basically awareness के बाद फिर होता है what is the response to policy. अभी जब आपने what तो तय कर लिया, then this is your policy formulation. Now that is where I've already talked to you in great detail that the more decentralized you are, the better you will be. Whether it is Zilla Parishad or it is Panchayat or it is, whatever, the more decentralized you can get, the more micro you can get, the more, the more pointed, specific, the better off you would be. But उसके बाद जो, बड़ी चीज़ आती है, वो आती है कि how to do it. इस पर कोई तवज्जो नहीं देता है, इस पर कोई बात ही नहीं करता है. What तो हो गया. And by the way, please do recall that I have said that the what itself is very important to define where and how you do it. And then the question arises as to how you will implement it. And nobody talks about it because that also is, by the way, critical. Because unless you know how, what can is तो कुछ फायदा नहीं होगा. Because the most problem, the biggest problem is in the how. So that is where you will get the bureaucracy, that is where you will get the vested interest, that is where people will tell you, no, this is not to be done because it harms them. And very small examples. If you want to dig a sewer line in a locality, people who are affected by the road being dug up say यहाँ नहीं बनना है, आप यहाँ बनाइए, यहाँ नहीं करना है, वहाँ बनाइए. कैसे उनको आप साथ में लाएं? How do you take it together? How do you find the lowest common denominator? How do you activate it? All of this is critical for doing what you want to do, and nobody talks about it. And that's where really, as they say, the rubber meets the road. Because what तो सब तय कर लेते हैं, अगर how you do it is where actually it becomes the key critical part. तो इसके लिए हमको, and that is where you should ask the speakers who come here also, that whenever they tell you about what to do in a particular sector, say सर ये कैसे होगा, ये बताइए, उसमें ढूंढ लीजिए आप कि ये उसको आपको करने को बहुत ज़रूरी है. तो तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि मैंने इसके पहले बात करी है आपसे कि एक बहुत बड़ा फ़र्क है बिटवीन हाउ, व्हाट एंड हाउ, वो दोनों के लिए, कि डूइंग इट बिहाइंड क्लोज डोर्स एंड डूइंग इट इन अ पब्लिक डोमेन.
क्योंकि डेमोक्रेसी में क्लोज डोर के साथ काम नहीं बनता है, इट डज नॉट वर्क। दैट आप कहीं सेक्रेटरी, आप बहुत, वी हैव गॉट दिस वंडरफुल आइडिया दैट वी विल मीट द सेक्रेटरी और वील कॉल द मिनिस्टर हियर और द सेक्रेटरी, और उनसे हम 2 बात कहेंगे तो वो हरगिज़ नहीं, कुछ सवाल ही नहीं है। आपको उसके लिए, जैसे मैंने पहले कहा, आई विल नॉट टेक मोर टाइम इट, यू हैव टू डेवलप अ public narrative, a public opinion at whatever level you want to achieve, at the district level or the state level or the central level. So that's that. Then the next point about after implementation, which is how, is monitoring and accountability. क्योंकि that's where everything falls down. होता ही नहीं है। और हम लोगों ने इसीलिए नीति आयोग में एक बड़ा डिपार्टमेंट बनाया था कॉल्ड द डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफिस, DMEO। उसके हेड थे शेखर बोनू, जो मेरे साथ ADB में थे और डॉक्टर हैं और IAS भी हैं, सभी कुछ हैं एक तरह से, तो वो उसको हेड कर रहे थे। 3-4 साल में उन्होंने इतना ब्रॉट अबाउट सच अ बिग डिफरेंस। 343 गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, इनका कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, कहीं कोई पूछने वाला नहीं क्या हो रहा है, कहाँ हो रहा है। हम लोगों ने कहा नीति आयोग में DMEO से, सोमनाथन साहब जो सेक्रेटरी एक्सपेंडिचर थे उनके साथ मिलकर, कि हम हर मिनिस्ट्री से कहेंगे कि हमें हर स्कीम का आप बताइए टारगेट क्या है, सालाना टारगेट क्या है, आप ही बताइए, हम उसको सिर्फ मॉनिटर करेंगे और हमें आप बताइए, फिर वो 1 साल बाद आप आइए हमारे पास, हम उसकी मॉनिटरिंग, और हमने मॉनिटरिंग उसकी थर्ड पार्टी से करवाई, बाहर के जो कंसल्टेंट्स हैं, रिसर्चर्स हैं, उनसे करवाई। इट ब्रॉट अबाउट अ मैसिव चेंज, क्योंकि हमने उनसे ये कहा कि अगर इस मॉनिटरिंग के ऊपर ही फिर आपका अगले साल का बजट एलोकेशन होगा। बहुत नई चीज़ शुरू हो गई वहाँ पर, मगर ये फिर इत्तेफाक ऐसा है, इसमें मुश्किल है कि वो हुई, और अब फिर मुझे जो सुनने में आया है कि फिर वो, अभी दिस इज़ अ पार्ट ऑफ द हाउ, अब उस पर कौन जोर डालेगा, कौन प्रेशर डालेगा, इन्फ्लुएंस करेगा कि वो चलती रहे, क्योंकि जहाँ पे वो जो लोग कर रहे हैं किसी के हित में नहीं है कि वो ठीक से चले, है ना, बात सही है ना, क्योंकि हित में तो उनके जो कि नीचे उनके रेसिपिएंट हैं। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस सबको डिजिटाइज कर देंगे, तो मतलब किसी के हाथ में ही ना रहे। कितना करेंगे डिजिटाइज, क्या क्या करेंगे डिजिटाइज, स्कूल नए बने, अच्छे बने, उसमें पढ़ाई अच्छी हो, कहाँ से डिजिटाइज कर लेंगे, उसकी एक लिमिट है ना, उसकी एक हद तक लिमिट है। तो इसलिए अब किसान को पैसा तो दे दिया डिजिटाइज से करके, वो किसान समझ, मगर उसमें वो कैसे अपनी खेती करता है, कितना पानी जोत करता है, कितना उसमें फर्टिलाइज़र डालता है, किस तरह का उसका वाटर लेवल कितना नीचे हो रहा है। पंजाब में 700 गाँव में जो है वो आपके जो है वो ये एक्वाफायर्स बिल्कुल सब ख़राब हो गए हैं, उसमें सब चीज़ें मिनरल्स आने लगे हैं, तो वो कौन करेगा, कैसे होगा, उसकी स्कीम है, उसकी स्कीम को आपको जो है देखना पड़ेगा कि उसकी कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुई। तो ये जो मॉनिटरिंग है वो बहुत बड़ी बात है, और ये मॉनिटरिंग में ही आप जुड़ सकते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। और मॉनिटरिंग इज़ वेरी ऑफन डन बेस्ट बाय पीपल हु आर आउटसाइड द सिस्टम। So why not to try and do that, and you can be the public voice, you can be the public narrative. तो इसलिए आप उसको that's another part of thing that you can. The other thing that I talked about was accountability. कि भाई जो होना था वो क्यों नहीं हुआ, या वो क्यों अच्छा हो गया, इसके लिए जिम्मेवार कौन है, इसके लिए बताना आपको ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप वो नहीं बता पाएंगे तो इसके लिए बहुत चीज़ें ज़रूरी हैं। जैसे कि मैंने काम शुरू किया था राम भाव मलगी, प्रबोधनी वगैरह के साथ, कि यूपी के 15 डिस्ट्रिक्ट में कुपोषण, मेल न्यूट्रिशमेंट, बहुत, यू मस्ट हैव हर्ड, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे आते हैं और बताते हैं कि हमारे बच्चे अभी भी 35%, 38%, 34% अभी भी कुपोषित हैं। दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। अभी हम लोगों ने पहले इंडिया में एक बहुत बड़ा काम शुरू किया, प्रोग्राम शुरू किया है कि 270 मिलियन चिल्ड्रन, 27 करोड़ बच्चे हमारे जो है वो लेड से पॉइजनड हैं, जिससे कि उनका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है। 27 करोड़ ऑफ अ टोटल कोहॉर्ट ऑफ अबाउट 40 करोड़, जो उम्र की 1 से 5 साल की उम्र बच्चे, कैसे करें इसको, क्यों हो रहा है ये, इसके लिए कौन जिम्मेवार है, क्यों, इसके लिए कौन सा लॉ बना। ये हम लोग अब बहुत बड़ा काम कर रहे हैं पहले इंडिया में, और अच्छी तरह से चल रहा है। इसमें हमें बहुत बड़ा अच्छा रिस्पांस मिला है, क्योंकि ये अपना पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड इस पर डिपेंडेंट है ना। अगर अब कहने को ये होता है कि मुझसे कहा किसी ने, बहुत सीनियर है, अरे क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, इतने तो सारे हमारे बच्चे सब MNCs के हेड हैं, तो कैसे हो सकता है ये। बट दैट्स जस्ट अ मैटर ऑफ स्टेटिस्टिक्स, आउट ऑफ 140 बिलियन, even if 1% go up, more than enough to capture everything in the world. Is that all right? अब ये 50% of our women are anemic, even today.
अब उसके लिए कौन अकाउंटेबल है और कब से स्कीम चल रही है? विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री कब से है डैशबोर्ड में? कौन करेगा इसकी अकाउंटेबिलिटी, कैसे होगी? मे बी दैट्स द फीडबैक लूप। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें हिस्सा लें, क्योंकि और सब लोग, और ये जो स्टार आइड थॉट होता है कि हम सिर्फ पॉलिसी मेकिंग में जाएंगे, एक तो बहुत मुश्किल है, और दूसरा है कि हो सकता है उसका कि बहुत ज़्यादा उससे आपको बहुत 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 सेटिस्फैक्शन ना मिले। इसमें शायद ज़्यादा सेटिस्फैक्शन। तो मैं जो कुपोषित की बात कर रहा था, तो उसमें मुझे जब लिया, मैंने एक रिव्यू मीटिंग ली लखनऊ में जाकर, तो मुझे वहाँ के फील्ड में लोगों ने बताया कि सर ये कुपोषण को कोई समझता ही नहीं है क्या है गांव में, ये कहाँ से लफ्ज़ आ गया, ये शब्द कहाँ से आ गया? ये इतनी दूरी है बिटवीन व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू एंड व्हाट वी आर ट्राइंग टू अचीव, तो ये कौन पूरी करेगा? तो इसलिए जो अकाउंटेबिलिटी है, एक आखिरी चीज़ बस ये है कि ये कि इवैल्यूएटिंग द इम्पैक्ट, कि भाई कर लिया, फिर उसके बाद इम्पैक्ट क्या हुआ, कुपोषण घटा कि नहीं घटा, बच्चे बेहतर हुए कि नहीं हुए, उसको कैसे करेंगे इवैल्यूएट आप? जितना उसको क्वांटिफाई कर लें उतना बेहतर है, जितना क्वांटिफाई कर लें। मगर उसमें एक जो आखिरी चीज़ जो जुड़ी हुई वो है एट्रीब्यूशन की। बात बहुत बड़ी हो जाती है कि किसने किया, और कई बार आपको खुद अच्छा लगता है कि हमारा नाम आए कि मैंने किया, और ये हमारी जैसे समाज में बहुत ही मुश्किल होता है, क्योंकि सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स एंड फेलियर इज़ एन ऑर्फन। तो आपने जब कुछ काम अच्छा कर लिया तो उसके लिए 10 लोग आ जाएंगे करने के लिए, तो वो कैसे करें, वो एट्रीब्यूशन कैसे अचीव करें पब्लिक पॉलिसी में, और उसको इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दैट विल गिव यू द मोटिवेशन टू डू इट। अगर एट्रीब्यूशन हो जाए तो मोटिवेशन हो जाता है। तो ये इतनी चीज़ें हैं इस पब्लिक पॉलिसी में जिसके बारे में आपने शुरुआत की है। तो मैंने सोचा था ये कि शुरू में आपको बता दूं द कम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस टॉपिक, द अमेजिंग sort of beauty of this topic, and the great satisfaction that you can achieve out of this by being in very different places of public policy, and not necessarily only at the level where you are making policy or you are even helping to make policy. एक ये illusion होता है that if I am in the ministry and if I am working as a research assistant, तो मैंने फाइल में कुछ लिख दिया तो उससे बात बन गई. I am not sure whether that is better than doing a research paper which will influence at least some thousand people or some readers that you've got. Thanks a lot for listening to me. Yeah.